Welcome students, welcome to the e-learning session of statistics. Okay, we have already started with this chapter, first chapter of your statistics syllabus, and we have discussed about economics portion of the chapter. Okay, so that chapter, the first chapter of your syllabus in statistics is divided into two parts. The first part is dealing with basics of introduction to economics. Okay, and the second part relates to how statistics is interlinked or related to economics. Okay, so we have finished the economics part of the chapter. Now we will move on to the statistics part of the first chapter. Okay, so let's see what are the topics we'll cover today. Topics to be covered are meaning of statistics, statistical tools, okay, and then we will cover features of statistics, okay, and there we will see what is plural and singular noun related to statistics, and then we will see the scope of statistics. We will learn the functions of statistics, and lastly limitations of statistics. So these are the areas we will cover today in this session. Okay, so let's begin with the first topic for today, that is meaning of statistics. Okay, before we move on to the meaning of statistics, what is statistics, let's see two terms that we need to cover. That is, first is the quantitative variable. Quantity. Okay, quantitative variable is connected to quantity. Okay, quantitative. Now please look at the board, all of you. Quantitative variables are those which can be expressed in numerical terms. Okay, which can be expressed in numerical terms. So anything which you can quantify, which you can say in terms of numbers, okay, that is a quantitative variable. Example, students marks. बच्चों के स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होते हैं आप उनको नंबर्स में बता सकते हो. So it is a quantitative variable because you are quantifying, you are giving the exact numbers or the amount. Okay, and height of the people, that also can be measured in numerical terms. ठीक है, so anything which can be measured in numerical terms, in terms of numbers, which can be expressed in terms of numbers, is a quantitative variable. इसको आप quantify कर पाओ. Okay, and another one is qualitative variable. Qualitative, okay, that relates to quality of anything, which cannot be expressed in numerical terms. Okay, so qualitative aspects को ये cover करता है कि quantify नहीं किया जा सकता, इसको आप numbers के terms में express नहीं कर सकते. So it is different from quantitative variable. Okay, example, honesty, intelligence. Okay, what is, can you measure honesty? No. Can you measure intelligence? No. These are qualitative characteristics. Okay, you cannot measure them in terms of numbers, but yes, you can rank them. आप उसकी ranking कर सकते हो, है ना, कौन सबसे ज्यादा honest है, कौन सबसे ज्यादा intelligent है, that you can do 1 2 3 4 and like that, but you cannot measure them in terms of numbers. You can rank them. आप उनकी ordering कर सकते हो, आप उनको rank कर सकते हो, लेकिन आप उनको numbers के terms में measure नहीं कर सकते हो. Okay, but if you can rank them, अगर आप उसकी ranking कर पाओ, okay, if you can rank, then statistical analysis cannot be made with them unless numerical equivalents are assigned to them. Okay, तो बात क्या हो रही है कि quantitative variables जो है उसको आप statistical analysis में use कर सकते हो, है ना, क्योंकि statistics में numbers होते हैं, है ना. So you can have statistical analysis in relation to quantitative variables, but you cannot do that with the qualitative variables because this cannot be expressed in terms of numbers. Okay, but अगर आप उसका numerical equivalent numerical equivalent क्या होता है, जिसको आप numbers के terms में, है ना, express कर सको, ऐसा कोई उसका alternative अगर आप ढूंढ ले, then you can use it for statistical analysis. ठीक है, कैसे कर सकते हैं? I just told you that this can be ranked, है ना, आप इंटेलिजेंस को रैंक कर सकते हो, कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन उससे कम है, and so on. And similarly honesty and similarly other characteristics which you cannot quantify but you can rank. Okay, so if you can rank these qualitative variables, then it can be used as a numerical measurement. ठीक है, अगर आप रैंकिंग कर दोगे तो रैंक्स कैन बी यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. ठीक है, तो दो चीज हम लोगों ने देखी, एक तो है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स.
क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड होते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो उसको आप आराम से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज कर सकते हो। लेकिन क्वालिटेटिव फीचर्स जो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी चीज की, उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो। तो जब क्वांटिटी नहीं पता है, क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, तो यू कैन नॉट डू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ओके विद देम। लेकिन आप अगर उनकी रैंकिंग कर सकते हो, दे कैन बी रैंक्ड, देन दैट रैंक ओके दोज रैंक्स कैन बी यूज्ड एज न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब उसके बराबर का। क्वांटिटी तो पता नहीं है, लेकिन क्वांटिटी के इक्विवेलेंट है ना। रैंक जो है, आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता कि वो कितना ऑनेस्ट है या कितना इंटेलिजेंट है, बट यू नो द रैंक दैट इट इज रैंक 1 और रैंक 2 और रैंक 3। सो दीज रैंक्स कैन बी treated as numerical equivalent, okay, and these ranks can be used for statistical analysis. Okay, now we come to what is statistics. Statistics is a store of quantitative information. It is a store, very basic you can say definition of statistics, very basic meaning explanation of statistics. Statistics क्या है? It is a store. Store मतलब जहाँ पे आप कोई चीज इकट्ठा करके रखो, है ना। तो store of quantitative information, information, कोई भी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अगर आप नंबर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करके स्टोर करो, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, इट रिलेट्स टू क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स, स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो हमेशा फैक्ट्स पे बेस्ड होती है ना। आप जाते हो, आप रिसर्च करते हो, आप पता करते हो, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, है ना। फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स मतलब खोज, है ना। तो खोज में जो भी आपको फैक्ट्स मिलते हैं, जो भी फैक्ट्स मतलब क्या है कि जो भी आपको, यू कैन नॉट से वेदर दे आर ट्रू और नॉट, है ना। ट्रुथ और ट्रुथ उसके एस्टैब्लिश आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो सेकेंडरी चीज है। सबसे पहली चीज ये होती है कि आपने वो खोज के दौरान कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, और इन इंफॉर्मेशन को अगर आप क्वांटिफाई कर सको, यानी कि नंबर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सको, तो आप उनको क्वांटिफाई करने के बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज कर सकते हो। सो स्टैटिस्टिक्स इज अ स्टोर ऑफ क्वांटिफाइबल और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड इट रिलेट्स टू क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। जो भी फैक्ट्स और फाइंडिंग्स आप कलेक्ट कर रहे हो अपने खोज के दौरान, वो फाइंडिंग्स, वो फैक्ट्स को आप क्वांटिटी के टर्म्स में, नंबर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन के बारे में, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, है ना। ये खोज करने में भी कई लोगों को ये वर्क असाइन किया जाता है। कौन असाइन करता है? गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, है ना, कि पॉपुलेशन के बारे में पता करो। तो वो लोग क्या करते हैं? दे गो टू ईच हाउस एंड दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। नाउ व्हाट डू? दे गेट द इन्फॉर्मेशन एंड देन दे एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कि हाँ, इस घर में, इस फैमिली में इतने लोग हैं, कौन कैसा है ना। हाउ मेनी मेल्स, हाउ मेनी फीमेल्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन, हाउ मेनी young people, how many old people, every data they collect. तो डेटा जो होता है, यही डेटा को नंबर्स के टर्म्स में वो एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो फिर उसकी एनालिसिस होती है कि हाँ, किस कंट्री में, किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस टाउन में कितनी पॉपुलेशन है ना। इसी तरह से तो काउंटिंग होती है। तो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग, इसी तरह से हर चीज की फैक्ट्स और फाइंडिंग को क्वांटिफाई किया जाता है। ओके, तो ये काम किस चीज का है? यही स्टैटिस्टिक्स में किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही है टू क्वांटिफाई इंफॉर्मेशन, ओके, एंड देन एनालाइज इट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द मोर स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। So now we will discuss the tools of statistics. Okay, किन चीजों से आप स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हो? ओके, तो स्टैटिस्टिकल टूल्स जो है, इट रेफर्स टू सिस्टम, मेथड और टेक्निक्स, ठीक है। टूल्स मतलब सिस्टम या मेथड या टेक्निक्स जिनसे आप क्या करते हो? यू कलेक्ट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ओके, एंड देन those quantitative information can be raw data. raw data मतलब जो अभी पूरी तरह से डेवलप करके आपने उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं किया है ना।
फैक्ट्स हैं, अभी उन पे आपको वर्क करके उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है. तो रॉ डेटा मीन्स दैट. ओके, अभी उसमें बहुत सारे आपको काम करना है, तब जाके वो एक फाइंडिंग बनेगा, एक फैक्ट इंफॉर्मेशन बनेगा. ओके, so it is a raw data. Statistical tool refers to system, methods or techniques to collect quantitative information. Okay, and statistical information जो होती है, it can be raw data which needs to be classified, tabulated or presented in a systematic manner. आप अगर कोई डेटा कलेक्ट करते हो, है ना, रॉ डेटा कलेक्ट करते हो, उसके बाद आपको उसको क्लासिफाई करना पड़ता है ना. क्लासिफाई मतलब उसको सही ग्रुप में डालना पड़ता है, टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ता है, जिससे कि उसका प्रेजेंटेशन अच्छा लगे, लोगों को एक बार में सिंपल तरीके से वो समझ में आए, है ना. प्रेजेंटेशन अच्छा होने से इट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव, यू टेंड टू फाइंड इट मोर सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, है ना. सो व्हाट आर द स्टैटिस्टिकल टूल्स दैट वी सी? स्टैटिस्टिकल टूल्स में सबसे पहले होता है कलेक्शन ऑफ डेटा. द टूल्स विद द हेल्प ऑफ विच यू कलेक्ट द डेटा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना फैक्ट फाइंडिंग्स, ये सब ये आप कलेक्ट करते हो, क्या क्या चीजें हैं. तो ये दिस वी विल डिस्कस फर्दर इन different chapters. Each of them will be discussed separately in separate chapters. Okay, so I am not going to tell you right now, but these are the statistical tools. Okay, सबसे पहला tool है collection of data. किस तरह से, किन तरीकों से आप डेटा कलेक्ट करते हो, है ना, रॉ डेटा कलेक्ट करते हो. देन ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, किस तरह से कलेक्टेड डेटा को आप ऑर्गेनाइज करते हो, है ना, इकट्ठा करके आप किस तरह से उसको क्लासिफाई करते हो, ग्रुप करते हो, है ना. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है आप किसी चीज को और अच्छे से, जैसे जो चीज आपको रॉ तरीके से मिली है ना, हैफाजार्ड मैनर में मिली है, आप उसको अरेंज करो, यू आर अरेंजिंग देम, so that is organization, है ना. and then you are presenting that arranged data. आपने कलेक्ट किया, फिर उसको ठीक से ग्रुपिंग की, है ना, आपने सॉर्टिंग की. सॉर्टिंग इज डन इन दिस स्टेप, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन. आप यहाँ पे सॉर्टिंग कर रहे हो, कौन सा डेटा किस ग्रुप को बिलोंग करता है ना, उसको ठीक से अरेंज करके आपने रख लिया. अब वो जो अरेंज डेटा है उसको आप ठीक से प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि अभी वो रॉ फॉर्म में है ना. अब आप उसको ठीक से टैबुलर या अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, जिससे कि वो देखने में अच्छा लगे, है ना. एंड देन यू एनालाइज आफ्टर प्रेजेंटेशन. जब आपकी प्रेजेंटेशन वाला पार्ट हो गया, इजीली अब वो समझ में आ रहा है ना, देखने में भी ठीक लग रहा है और समझने में भी आसान लग रहा है. तो देन इन आफ्टर डूइंग ऑल दैट यू स्टार्ट टू एनालाइज. एनालाइज मतलब स्टडी करना शुरू करते हो, उस डेटा का मतलब जानने की कोशिश करना शुरू करते हो. ओके, you start researching, you start studying, going deep into the data and studying the you can say what can be the reason behind, okay, those raw data है, उसके पीछे क्या इंफॉर्मेशन छुपी है वो फाइंड आउट कर. अभी तो वो रॉ है, अभी आप उससे बैकग्राउंड में जाके उसकी एनालिसिस करो, उसको स्टडी करो टू फाइंड आउट व्हाट इंफॉर्मेशन डज इट contain. Okay, and finally you interpret the data. जब आप स्टडी करते हो उसके बाद क्या होता है, स्टडी करने से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट, है ना. तो ये इंटरप्रिटेशन मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है. ये यहाँ पे आप जब स्टडी कर चुके हो, व्हेन यू आर स्टडिंग दैट इज एनालिसिस, एंड व्हेन यू स्टार्ट टू इंटरप्रेट इट, यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड इट, है ना, उसकी रीजनिंग आपको समझ में आ रही है, उसका पर्पस समझ में आ रहा है, देन इट becomes information. Okay, and you call it interpretation of data. तो सबसे पहले आप रॉ डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है. अनअरेंज्ड डेटा है, वो रफ डेटा है, आपको पता नहीं है कि अभी वो आपके लिए कितना यूजेबल है, आपने जस्ट उसको कलेक्ट किया है. देन यू हैव स्टार्टेड टू सॉर्ट इट कि क्या आपके काम का है, क्या काम का नहीं है, उसको सही ग्रुप में डाल दिया. दैट इज ऑर्गेनाइजेशन. ओके, अरेंजमेंट. एंड देन आफ्टर अरेंजिंग इट यू प्रेजेंट इट. उसको और अच्छे तरीके से कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हो कि वो और सिस्टमेटिकली समझ में आए, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए. एंड देन यू आफ्टर अरेंजिंग, आफ्टर प्रेजेंटिंग इट इन अ बेटर वे, you start to analyze, you start the
स्टडी पार्ट, ओके, यू स्टार्ट स्टडिंग इट एंड देन एनालिसिस के बाद आप उसको, जब आपकी स्टडी कंप्लीट होती है, व्हाट यू डू, you understand it, you interpret it. Okay, so these are the statistical tools which we will deal with separately in different chapters. Each of them are separately dealt with in separate chapters. Okay, so these are the statistical tools that we use, okay, throughout the subject of statistics. We will be studying about these tools. Okay, so now we move on to the second part of our topic, that is features of statistics. Okay, but before we enter into the features of statistics, we have to discuss the plural and singular nouns of statistics. Okay, different economists, or you can say different scientists, have explained different aspects of statistics. अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, इंटरप्रेट किया है. तो सबसे पहले प्लूरल एस्पेक्ट क्या है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है. प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को कैसे अंडरस्टैंड किया गया, कैसे समझा गया है. तो स्टैटिस्टिक्स एज अ न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा. प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को क्या बताया जाता है? इट इज अ सेट ऑफ डेटा. ओके, इट इज अ न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा. अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में या नंबर्स के टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तभी हम लोग स्टैटिस्टिक्स का वहां पे यूज कर पाते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स इज अ न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा एज पर प्लूरल सेंस. अगर स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में हम लोग समझे तो वो न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा. प्लूरल क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, है ना. प्लूरल मीन्स मोर देन, जिसमें वन से ज्यादा होता है, एंड सिंगुलर मीन्स वन. ओके, तो प्लूरल सेंस में अगर हम लोग देखें स्टैटिस्टिक्स इज अ न्यूमेरिकल सेट ऑफ डेटा. सेट, एक सिंगल डेटा नहीं है, इज अ सेट ऑफ डेटा, है ना, कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ डेटा. Here statistics refers to aggregate of facts affected to a marked extent by multiplicity of causes, numerically expressed, enumerated or estimated according to reasonable standards of accuracy, collected in a systematic manner for predetermined purpose and placed in relation to each other. ठीक है, तो देखने में ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड सा डेफिनेशन लगेगा, बट इट इज वेरी वेरी सिंपल. ओके, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड लाइक दिस. इसका क्या मतलब है? देखिए, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट. फैक्ट्स है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है. हम लोग प्लूरल सेंस से बात कर रहे हैं, तो जब भी स्टैटिस्टिक्स से प्लूरल सेंस से बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि ये सेट ऑफ डेटा है. ओके, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, एक सिंगल फैक्ट या एक सिंगल डेटा नहीं है, कलेक्शन ऑफ डेटा है. ठीक है, तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है विच इज अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट. मार्क्ड एक्सटेंट मतलब टू अ, यू कैन से such an extent which can be noticed, है ना. marked extent मतलब जिसको आप नोटिस कर सको. it is a noticeable to a noticeable extent it is affected. affected मतलब जिसपे कोई चीज का प्रभाव पड़ा है ना. तो statistics refers to aggregates of facts which is affected, वो प्रभावित हुआ है, to a marked extent, noticeable extent, जो कि समझ में आ रहा है कि हाँ ये अफेक्ट हुआ है इसके ऊपर, by multiplicity of causes, बहुत सारे चीजों का उसके ऊपर असर दिखता है. ओके, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, जिसको आप न्यूमेरिकली क्वांटिफाइबली एक्सप्रेस कर सको, नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सको. ओके, सो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, ओके, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली एंड विच इज अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ मार्क्ड एक्सटेंट, विच यू कैन नोटिस. ओके, बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, बाय वेरियस कॉजेज, बहुत सारी चीजों से उस पर इफेक्ट पड़ा है. एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, जिसको आप एस्टिमेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी, है ना. आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि यही हुआ होगा, लेकिन टू अ ग्रेट एक्सटेंट आप सही हो सकते हो, है ना. आप एकदम एग्जैक्टली सही नहीं होगे तो भी आप बहुत हद तक सही हो सकते हो, है ना. टू अ ग्रेट स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मतलब एग्जैक्टली, है ना. तो आप एग्जैक्टली सही हो कि नहीं हो ये तो अलग बात है, लेकिन आप काफी क्लोज हो सकते हो
फैक्ट के, ओके, ट्रुथ के, कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर प्री डिटर्मिन्ड पर्पज। कलेक्शन भी, ये जो फैक्ट्स हैं, जो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हैं, इनका कलेक्शन भी सिस्टमैटिक तरीके से होता है, हैफाजार्ड नहीं है, रैंडम नहीं है। एक सिस्टम में एक साइंटिफिक प्रोसेस है इसका डेटा को कलेक्ट करने का, ठीक है, एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, और ये प्री डिटर्मिन्ड पर्पज के लिए कलेक्ट हो रहा है। तो इट इज फॉर अ प्री डिटर्मिन्ड पर्पज, ठीक है, पहले से कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ एम है जिसकी वजह से आपने डेटा को कलेक्ट किया है ना। अपने मन से आपने अचानक से डेटा नहीं कलेक्ट कर लिया, डेटा को कलेक्ट करने का कोई ऑब्जेक्टिव है, कुछ पर्पज है। प्री डिटर्मिन्ड, प्री डिटर्मिन्ड मतलब जो पहले से आपने सोचा हुआ है, पहले से उस पर्पज के बारे में आपको पता है, ठीक है, और उसी पर्पज को फुलफिल करने के लिए, उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो डेटा इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक साइंटिफिक, एक सिस्टमैटिक तरीके से आप डेटा कलेक्ट करते हो, प्री डिटर्मिन्ड पर्पज के लिए कलेक्ट करते हो, एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, ठीक है। तो डेटा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज अ सेट ऑफ डेटा, है ना, प्लूरल सेंस में बात हो रही है, इट इज एग्रीगेट ऑफ डेटा, है ना। तो एग्रीगेट ऑफ डेटा, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, तो उनको आप, उनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है वही स्टडी करना है हम लोग को, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, जो आप डेटा कलेक्ट करते हो उसको आप स्टडी करते हो इन रिलेशन टू ईच अदर, है ना। तो जो भी आप फैक्ट्स कलेक्ट किए हो, एक दूसरे से उसका रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हो, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इन प्लूरल सेंस वी स्टडी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का पर्पज ही यही है, ठीक है। वंस अगेन लेट मी एक्सप्लेन, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, एग्रीगेट है, एग्रीगेट मतलब कलेक्शन, है ना, ग्रुप ऑफ फैक्ट्स affected to a marked extent, marked, noticeable extent, है ना, to a great extent you can say, affected मतलब प्रभावित है, by multiplicity of causes, बहुत सारे factors से वो affected है, okay, numerically expressed, और वो quantified है, numbers में expressed है, enumerated और estimated, ठीक है, जिसका आपने एस्टिमेट निकाला हुआ है अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड्स। रीजनेबल स्टैंडर्ड्स मतलब ऐसे स्टैंडर्ड्स जो एस्टैब्लिश है, जो आइडियल है ना। तो रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मींस आप एग्जैक्टली नहीं भी बोल सकते तो भी काफी हद तक वो सही होता है, तब आप उसको एक्यूरेट बोलते हो। कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है, एक सिस्टमैटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से वो डेटा कलेक्ट होता है, प्री डिटर्मिन्ड पर्पस के लिए कलेक्ट होता है, और कलेक्शन के बाद यू स्टैब्लिश, ओके, यू स्टैब्लिश द रिलेशनशिप ऑफ ईच फैक्ट विथ वन अनदर, ओके। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, डेटा रिलेटिंग टू एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 5 टॉपर्स ऑफ क्लास 12 ऑफ अ स्कूल। एक स्कूल का, कोई भी एक स्कूल है, सपोज उस स्कूल के क्लास 12 के जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो बोर्ड का जब रिजल्ट आया तो उसके 5 टॉपर्स के, फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स हु हैव गॉट द मैक्सिमम परसेंटेज, ओके, वो निकाल के वो कलेक्ट किया गया, ओके। सो दैट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ओके, एंड देन दे आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। अब उनके नंबर्स देखे जा रहे हैं, उनकी परसेंटेज देखी जा रही है कि किसको कितना परसेंटेज मिला है, ओके, कंपैरिजन हो रहा है, दे आर being placed, they are being compared with each other, okay, for a predetermined purpose. Purpose क्या है, ये find out करना कि who is the topper of the school, okay, and how many people, how many students have got maximum percentage, है ना, जो highest percentage जो है, कितने बच्चों को maximum मिला है ना, and who are those 5 students who have got the maximum percentage. तो इसलिए इस पर्पस के लिए ये प्री डिटर्मिन्ड पर्पस है, और प्री डिटर्मिन्ड पर्पस में डेटा एग्रीगेट करके कलेक्ट किया जा रहा है ना, और उसको कलेक्ट करने के बाद में उसको एक दूसरे से उसका रिलेशन एस्टैब्लिश किया जा रहा है. So this is plural sense of statistics. Okay. So students, as we have already discussed, what is the plural sense of statistics? Okay. All the points have already been covered, but we will study now the features of the statistics in plural sense. ठीक है. तो जो भी चीजें हम लोगों ने अभी डेफिनेशन में देखी हैं, वही सारे पॉइंट्स जो हैं अब सेपरेट करके फीचर्स के रूप में आप पढ़ोगे. तो
separately, let's discuss one by one. We have already discussed. Let's go through them briefly. Aggregate of facts. तो पहला फीचर क्या है स्टैटिस्टिक्स का? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है. जब हम लोग प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे तो हमेशा स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर मतलब एक नहीं है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स. इट इज अ नंबर ऑफ फैक्ट्स टेकन टुगेदर. ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है. एंड नॉट अ सिंगल और आइसोलेटेड नंबर. एक सिंगल पर्सन की अगर आप एज बता दो, उससे क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं पता चलेगा, है ना. लेकिन दो या उससे ज्यादा लोगों की एज के बारे में अगर आप पता करोगे तो यू कैन कंपेयर. तो स्टैटिस्टिक्स का पर्पज ही एनालिसिस का होता है, कंपैरिजन का होता है ना, टू एस्टैब्लिश सम रिलेशन. अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एक आदमी की एज से या हाइट से. यू कैन नॉट एस्टैब्लिश एनी थिंग. ओके, सो इट इज अ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट. सेकेंड थिंग इज अफेक्टेड बाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज. मल्टीप्लिसिटी, बहुत सारे, है ना. मल्टीप्लिसिटी मतलब कई सारे, है ना, more than one. So, or you can say many. It is influenced by various factors together. As I have already told you, प्रभावित हुआ है ना. ये जो फैक्ट्स आपने कलेक्ट किए हैं, it is affected, it is influenced, है ना, by many factors. एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे सपोज करिए आप किसी क्रॉप के बारे में बात करिए, राइस के क्रॉप के बारे में बात करिए, है ना. तो कितना क्रॉप है राइस का या कैसा क्रॉप है, उसके ऊपर क्या क्या चीजों का असर पड़ता है. व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्रॉप ऑफ राइस? रेनफॉल का, फर्टिलाइजर्स का, सीड का, हाउ यू हैव कल्टीवेटेड, है ना, क्लाइमेटिक कंडीशंस, एवरीथिंग अफेक्ट द क्रॉप. ठीक है, तो एक क्रॉप है, क्रॉप ऑफ राइस विच इज अफेक्टेड बाय सो मेनी factors. So multiplicity of factors means many factors which affect a thing. Okay, so here we are talking about data. We are talking about raw facts which are affected by many factors and then numerically expressed. Statistics में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वही facts और data study करते हैं, analyze करते हैं जिनको आप quantify कर पाओ, जिनको आप quantitative numbers में आप express कर पाओ, numerically express कर पाओ. Collected with reasonable standard of accuracy. Reasonable मतलब काफी हद तक, रीजनेबल मतलब काफी हद तक. मैक्सिमम और वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है. जैसे हम लोग जब मैथ्स में आप कुछ इक्वेशंस वगैरह करते हो, है ना, मैथ्स में आप जब कुछ प्रूव करते हो तो वहां पे क्या बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी की जरूरत होती है. मैक्सिमम स्टैंडर्ड मतलब ऑलमोस्ट एक्यूरेट होना चाहिए, है ना. अकाउंटिंग में भी आप देखोगे, जब आप आगे पढ़ोगे तो वहां पे भी एक्यूरेसी की जरूरत, बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है ना. लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी. आपसे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की उम्मीद नहीं की जा रही, क्योंकि जो कलेक्शन ऑफ डेटा है आप उसकी एनालिसिस कर रहे हो. यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी वेरी मच एक्यूरेट विथ योर रिजल्ट. ओके, तो रीजनेबली टू अ ग्रेट एक्सटेंट अगर आपका रिजल्ट सही है और इट इज क्लोज टू द ट्रूथ, then it is okay. It does not have to be completely true. Okay, then predetermined purpose के लिए ये डेटा कलेक्ट किया जाता है. आपको एडवांस में पता है कि क्या रीजन है डेटा कलेक्ट करने का, पर्पस क्या है ना. एंड देन कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि एक सिस्टमैटिक तरीके से, पर्पस ओरिएंटेड तरीके से डेटा को कलेक्ट किया जाता है. ओके, एंड इट इज प्लेस्ड इन रिलेशन टू वन अनदर. अगर आप डेटा को कलेक्ट कर, जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया वो कंपेरेबल ही नहीं है ना, दो डेटा को आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, कोई पर्पस ही नहीं, आपका फुलफिल ही नहीं होगा स्टैटिस्टिक्स का पर्पस. तो आपको जब भी आपको ये डेटा कलेक्ट कर रहे हो, प्री डिटरमिन्ड पर्पस से कलेक्ट कर रहे हो, और वो पर्पस जो है वो क्या है? रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना, है ना, कंपेरिजन करना, दो फैक्ट्स को कंपेयर करना. ठीक है, तो these are the features of statistics when we talk in the plural sense. Okay, statistics से plural sense में ये सारे features हैं. अगर आपको जो मैंने डेफिनेशन बताया वो डेफिनेशन याद हो जाएगी तो आपको ये पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं होगा, ऑटोमेटिकली उसमें कवर्ड है. आपको अपने आप ही डेफिनेशन में ही मिल जाएंगे सारे, है ना. और जब आपसे क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यू कैन इजीली राइट द पॉइंट. लेकिन अगर आपको वो डेफिनेशन याद नहीं होती है तो भी आपको ये पॉइंट्स अगर याद है तो इस पॉइंट्स के बेसिस पे आप यू कैन राइट दैट डेफिनेशन. तो अगर डेफिनेशन याद करेंगे तो पॉइंट्स याद रहेगा, पॉइंट्स याद करेंगे तो डेफिनेशन याद हो जाएगा. तो वाइस वर्सा यू कैन स्टडी एनी वन वे टू लर्न द होल थिंग.
डेफिनेशन और पॉइंट्स दोनों एक साथ में अगर लर्न नहीं हो रहा तो एक चीज लर्न कर लीजिए, दूसरा चीज अपने आप आपको आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू सिंगुलर एनालिसिस और यू कैन से सिंगुलर डिस्कशन ऑन स्टैटिस्टिक्स।